Next topic is classification of colloids. Classification of colloids. So we will classify the colloids on the basis of three categories, on the basis of three conditions. Okay. First, on the basis of physical state of dispersed phase and dispersion medium. Second, on the basis of force of interaction among dispersed phase and dispersion medium. And third, on the basis of type of particles of dispersed phase. हमें तीन राउंड पे क्लासिफिकेशन देखना है. सो फर्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल states of dispersed phase and dispersion medium. डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम के फिजिकल स्टेट के बेस पर हम क्लासिफाई करेंगे. फॉर एग्जांपल, जैसे हमने डिस्पर्स फेज के लिए, डिस्पर्शन मीडियम के लिए सॉलिड, वी कैन गेट कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड प्लस सॉलिड, सॉलिड प्लस लिक्विड, मीन दीज आर द डिस्पर्स फेज. So dispersion medium is solid and dispersed phase is gas or solid or liquid. So we have three combinations. Okay. So in this table, the physical state of dispersed phase is mentioned here and dispersion medium here. And which type of sol or colloids we call, this is written in this column. And examples of this type of, example of such type of colloids. Okay. First, when dispersed phase is solid and dispersion medium is solid, means solid में हमने solid को mix किया. Okay. When we mix solid in solid, so this is called solid sol and colored glasses and gem stones. When we mix solid in liquid, so this is called sol. आपके सिलेबस में sol है. ओके, आपको पूरा डिटेल में सॉल्व पढ़ना है. ठीक है, तो सॉल्व क्या होता है? व्हेन वी मिक्स सॉलिड इन लिक्विड, व्हेन सॉलिड इज डिस्पर्स्ड इन लिक्विड, सो दिस इज कॉल्ड सॉल्व. पेंट्स, सेल फ्लूइड्स, हमारे सेल के फ्लूइड में क्या होता है? जो हीमोग्लोबिन वगैरह है, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेट्स, ये सब क्या है? ये उसमें डिस्पर्स्ड है. ये सॉलिड है, वो डिस्पर्स्ड है. नेक्स्ट इज when solid is dispersed in gas, so this is called aerosol. Aerosol आपको और भी मिलेगा. Okay, so aerosol is smoke dust. When liquid is mixed in solid, अब हमारे पास क्या है? मीडियम क्या है? सॉलिड. उस सॉलिड में भी हमने लिक्विड दिया, so this is called gel. Okay, so cheese, butter, jellies. नेक्स्ट है लिक्विड इन लिक्विड, इमल्शन. तो इमल्शन अब आपके सिलेबस में इस साल अब वहां से ओमिट हो गया है. So, but you should know about the liquid when dispersed in other liquid. So, it is called emulsion. Milk, hair cream are the example of emulsion. Okay. Liquid in gas. Liquid को अभी हम गैस में देख रहे हैं. So, this is also called aerosol, fog, mist, cloud. Next is gas in solid. Gas is dispersed in solid. So, this is solid sol, pumic stone and foam rubber. And gas when dispersed in liquid, so this is called foam and froth, whipped cream and soap, leather. Gas in liquid, आप सॉफ्ट ड्रिंक नहीं समझेंगे, वो तो सोल्यूशन है, ट्रू सोल्यूशन, वहां कोलाइडल नहीं बनता है. ठीक है. सो एंड ये these are the 7 categories only, but gas in gas never form any colloidal state because gas और गैस का जो मिक्सचर होता है वो होमोजीनस होता है and colloids are heterogeneous. Okay. So sometimes if this liquid is water, यदि हमने वाटर लिक्विड में कोई एक सॉलिड मिलाया तो सॉल्ट बन रहा है, तो उसे अपन एक्वासॉल या हाइड्रोसॉल कहेंगे. तो कभी कभी डिस्पर्शन मीडियम के बेस पर भी
हम उनके उस सॉल्ट का नाम भी रख सकते हैं। तो अभी देखा आपने एक्वासॉल या हाइड्रोसॉल। इफ dispersion medium is alcohol, you will name this salt as alkosol. If the dispersion medium is ether, so ethrosol. If the dispersion medium is benzene, so this is benzosol. Clear है? तो इस तरह से हम इसे सॉल्ट के नाम दे सकते हैं on the basis of their medium. Which substance, which liquid we will take for the dispersion medium? Yeah, taken as dispersion medium. Second type of classification is based on the force of attraction between the dispersed phase and dispersion medium. Okay, on the basis of forces of attraction present between the dispersed phase and dispersion medium. डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम के बीच में क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है? ओके, सो only two type of force exist. First is attraction force and second one is repulsion force. Okay, so when repulsion force is present in between the dispersed phase and dispersion medium, so we call such colloids as lyophobic salt. Okay, so first is lyophobic salt and second is lyophilic salt. Okay, lyophobic and lyophilic means lyophobic means phobia, hate करना, repel करना, mix नहीं होना. So when we mix dispersed phase in dispersion medium, they do not mix well. वो बहुत अच्छे से नहीं मिक्स होते हैं. मीन्स वहां पर वो अपना सेपरेट ही रहना चाहते हैं, उनकी अलग ही लेयर बन जाएगी या अलग से वो दिखेंगे. तो उसमें क्या हो रहा है, लायोफोबिक सॉल्ट कहलाएंगे. मीन्स हमने उसे सिंपल मिक्स करके नहीं बना सकते हैं, इसके लिए हमें प्रिपरेशन मेथड की जरूरत पड़ेगी. लायोफोबिक सॉल्ट आसानी से नहीं बनते हैं, उन्हें किसी मेथड के थ्रू हमें बनाना पड़ता है, क्योंकि वो तो दोनों के बीच में तो है ही नहीं अट्रैक्शन फोर्स, वहां वो तो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं. ठीक है, तो सिंपल मिक्सिंग से वो नहीं बन सकता है. और ये क्या है, मान लो एक बार हमने बना भी लिया, ठीक है, तो कोई भी एक ऐसा फैक्टर बहुत अच्छे से उन्हें फिर से वापस से तोड़ भी सकता है, मतलब वापस से अलग कर सकता है, तो इनका सेपरेशन हो जाएगा. मींस लायोफोबिक सॉल्ट्स आर अनस्टेबल, ये इरिवर्सिबल है. लायोफोबिक सॉल्ट्स इरिवर्सिबल है. क्यों? क्योंकि एक बार हमने उसे बना दिया, ठीक है, बनने के बाद यदि वो डिसोशिएट होते हैं या सेपरेट होते हैं, तो आप सोचे कि अपने आप फिर से बन जाए, नहीं, हमें वापस से अपनी पूरी प्रोसेस करना पड़ेगा. तो ये क्या है, स्टेबल नहीं है, ये इरिवर्सिबल है, और ये बनाने के लिए हमें कुछ स्पेसिफिक मेथड्स की जरूरत पड़ती है. लायोफिलिक सॉल्ट, फिलिक मतलब एफिनिटी, अफेक्शन, मींस डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम के बीच में अट्रैक्शन फोर्स रहेगा. तो इसके लिए सिंपल हम डिस्पर्शन मीडियम लें और डिस्पर्स फेज उसमें मिला दें, तो आपका कोलाइड्स बन जाएंगे, वो कोलाइडल सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा. फॉर एग्जांपल आप वाटर लीजिए और उसमें 1 और 2 स्पून गम उसमें मिक्स कर दीजिए, चेक करिए. अब आप देखेंगे वो जो वाटर है वो ट्रांसल्यूसेंट हो जाएगा, कोलाइडल बन गया. काफी देर तक भी आप रखे रहेंगे तो वो सेटल नहीं होगा, मतलब वो स्टेबल है, सेपरेशन अपने आप नहीं हो रहा है, मीन्स वो स्टेबल है. ठीक है, और अब आप उसको ड्राई कर दीजिए, एवोपरेट कर दीजिए उसका वाटर, तो वापस से गम अलग हो जाएगी, फिर उसमें वाटर मिला दीजिए, वापस से कोलाइडल बन जाएगा. मतलब ये क्या है, रिवर्सिबल है, स्टेबल है, रिवर्सिबल है, और इजीली बना सकते हैं हम इन्हें. सो ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम इसे दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, लायोफोबिक एंड लायोफिलिक.
नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है जो कि आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, वो थर्ड क्लासिफिकेशन है जिसमें हम क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स फेज. ओके, थर्ड क्लासिफिकेशन on the basis of type of particles of dispersed phase. डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल के टाइप पर हम इसे क्लासिफाई करेंगे. ओके, सो these are three types. First, multimolecular. Second, macromolecular colloids. And third one is associated colloids. Multimolecular colloids, macromolecular colloids and associated colloids. Okay? So multimolecular colloids क्या है? मल्टीमोलिकुलर और एसोसिएटेड आपको एक से लगेंगे, लेकिन बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, ये डिफरेंट, टोटली डिफरेंट है. पहले हम इससे समझ लेते हैं, इसे भी किनारे करते हैं. सो मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स हमने देखा था, जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं या जो डिस्पर्स फेज होती है उसके पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच का होता है. क्लियर? सो फॉर मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स a single molecule having such range of size, उस रेंज में ही उसका साइज होगा. एक इकलौता मॉलिक्यूल, एक सिंगल मॉलिक्यूल ही इतना बड़ा होता है कि जो इस साइज को, कोलाइडल की जो रिक्वायर्ड साइज है वो पजेस करता है. तो क्या हो जाएगा? कोलाइडल. फॉर एग्जांपल क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन, ये सब क्या है? वो एक ही मॉलिक्यूल, कितना बड़ा मॉलिक्यूल होता है. हीमोग्लोबिन के एक मॉलिक्यूल में कम से कम 2500 के ऊपर, नियर अबाउट 2500 कार्बन होते हैं, कार्बन एटम होते हैं. मतलब ये सारे क्या होते हैं? पॉलीमर्स होते हैं. ये सारे क्या होते हैं? पॉलीमर्स होते हैं. तो मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स में पॉलीमर्स होते हैं. सिंगल मॉलिक्यूल का ये रेंज इतना बड़ा होता है कि वो कोलाइडल रेंज में होता है, तो कोलाइडल सॉल्यूशन बनेगा. अब हम बात करते हैं मल्टीमोलिकुलर और एसोसिएटेड कोलाइड्स. मल्टीमोलिकुलर कोलाइड्स, इसमें समझ में आ रहा है कि बहुत सारे मॉलिक्यूल गैदर्ड हो रहे हैं और उनका जो बंच बन रहा है, जो गैदर्ड फॉर्म है, वो कोलाइडल रेंज को फॉलो कर रहा है. ठीक है? फॉर एग्जांपल यदि हम वाटर में सल्फर पाउडर के फॉर्म में आप देखेंगे तो उसे भी हम मिक्स करते हैं तो वो तो ऊपर के ऊपर फ्लोट करने लगेगा. वो ऐसे तो मिक्स नहीं होता है, तो वो सस्पेंशन रहेगा भी. बट हम ऐसी कोई मेथड से सल्फर को बनाएं जो रिएक्शन में ही प्रोड्यूस हो, वाटर भी प्रोड्यूस हो और सल्फर भी प्रोड्यूस हो साइमल्टेनियसली, तो वो क्या होता है? ये बनते जाएंगे, मिक्स होते जाएंगे. तो उस समय हमें जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? सल्फर का कोलाइड्स मिलेंगे. तो जो कोलाइडल सॉल्यूशन मिल रहा है सल्फर का, उसमें सल्फर एग्रीगेटेड फॉर्म में है. एक सिंगल मॉलिक्यूल खुद में S8 होता है. उस S8 क्राउन के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में गैदर्ड होके एक बड़ा सा क्लस्टर बना लेते हैं. वो क्लस्टर कोलाइडल रेंज को फॉलो करता है, इसलिए मल्टीमोलिकुलर कोलाइड्स. अब आप थोड़ा सा भी यदि सल्फर लेंगे या एक्सेस में भी आप लेके चल रहे हैं, ज्यादा भी सल्फर मिला रहे हैं, तो शुरू में भी यदि थोड़ी सी अमाउंट भी लेंगे तो भी वो मल्टीमोलिकुलर, वो एग्रीगेट तो होंगे. ठीक है? तो दिस इज द मल्टीमोलिकुलर कोलाइड्स. इसमें आएंगे एसोसिएटेड कोलाइड्स में भी गैदरिंग होगी जैसे इसमें हुई थी, बट एक डिफरेंस है. एक एग्जांपल से आप समझ लीजिए. आप 100 ml वाटर ले लीजिए कंटेनर में. ठीक है? उसमें सॉल्ट डिजॉल्व, NaCl डिजॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए. कोई भी सॉल्ट डिजॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए. जैसे जैसे आप उसमें पोर करते जाएंगे, मिक्स करते जाएंगे, और मिक्स कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं, तो आप देखेंगे वो सॉल्ट डिजॉल्व होते जा रहा है. लेकिन एक स्टेज आपको मिलेगी तब जब आप कहेंगे अरे सॉल्ट डिजॉल्व नहीं हो रहा है, मतलब सैचुरेटेड आ गया.
और सैचुरेटेड सॉल्यूशन में आपने 11th में इक्विलिब्रियम में भी पढ़ा हुआ है, जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है वो इक्विलिब्रियम पे होता है। उसमें डिसॉल्व पार्टिकल्स क्रिस्टलाइज होते हैं जिस रेट से, उसी रेट से अनडिसॉल्व पार्टिकल्स भी डिसॉल्व होने लगते हैं। ठीक है, तो वहां सेम रेट से चल रही है, तो आपको ऐसा लगता है जो क्रिस्टल्स पड़े हुए हैं वो अब वैसे की वैसे पड़े हुए हैं, वो डिसॉल्व नहीं हो रहे हैं, वो हो रहे हैं। और जो डिसॉल्व ऑलरेडी थे वो क्रिस्टल के फॉर्म में आ रहे हैं, मतलब दोनों अपोजिट रिएक्शन साथ साथ में चल रही है। ठीक है, हम उस स्टेज की बात करें जब ये डिसॉल्व हो रहा है और उनका क्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट हो रहा है, मतलब जो सॉल्युबल पार्टिकल्स हैं वो क्रिस्टल के फॉर्म में एकदम से बड़े तो नहीं बन गए ना, पहले छोटे छोटे पार्टिकल्स, कुछ फ्यू पार्टिकल्स गैदर्ड होंगे, फिर और उसका क्लस्टर बढ़ेगा, फिर और आएंगे। तो जब उनकी गैदरिंग स्टार्ट हो रही है उस समय आप उस साइज को इमेजिन करिए जब कुछ नंबर के पार्टिकल्स वहां पर गैदर्ड हो चुके हैं और उनका क्लस्टर 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच की रेंज का है, उस साइज का है, तो वो बीच की स्टेज क्या मिलेगी आपको? कोलाइडल स्टेज। ठीक है, आप इस एक्सपेरिमेंट को दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। सपोज हमने सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लिया, आप उसे फिल्टर कर लीजिए, फिल्टर करने के बाद आपने इसके सॉलिड पार्टिकल्स अलग कर दिए। अब आपके हाथ में जो सॉल्यूशन है फिल्ट्रेट है वो एक ट्रू सॉल्यूशन दिख रहा है आपको, मतलब उसमें जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम सॉल्ट डिसॉल्व हो सकता था तो डिसॉल्व हुआ है। अब आप थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन करिए, तो टेम्परेचर डाउन करने पे सॉल्यूशन में आपने पढ़ा है सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। तो जैसे आप टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन करेंगे तो आप देखेंगे उस सॉल्यूशन की ट्रांसपेरेंसी खत्म हो जाएगी। आप ये घर पे भी करके देख सकते हैं। तो ट्रांसपेरेंसी क्यों खत्म हो रही है? क्योंकि टेम्परेचर डाउन करने से वो गैदरिंग स्टार्ट कर दी है पार्टिकल्स ने, मतलब वो इनसॉल्युबल होना चाह रहे हैं। तो इनसॉल्युबल होने के लिए उनकी गैदरिंग हो रही है और उनका क्लस्टर इस स्टेज पे आया जो कि कोलाइडल रेंज के लिए रिक्वायर्ड था। तो ये कोलाइडल सॉल्यूशन बन गया। मींस हर एक इलेक्ट्रोलाइट इनिशियल स्टेज पर तो ट्रू सॉल्यूशन बनाता है, लेकिन एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन के बाद कोलाइडल रेंज को फॉलो करता है या ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, तो वो कोलाइडल बन जाएगा। उस कॉन्सेंट्रेशन को हम क्रिटिकल कंसंट्रेशन कहते हैं और उस टेम्परेचर को, हर एक इलेक्ट्रोलाइट का अपना अपना एक टेम्परेचर होगा जिस पे वो कोलाइडल रेंज पोजेस करता है, उसे हम क्राफ्ट टेम्परेचर कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? क्राफ्ट टेम्परेचर कहते हैं। और उस समय जो उसकी कंसंट्रेशन है उसे हम क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन कहते हैं। क्रिटिकल मिसेल कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं, CMC, क्रिटिकल मिसेल कॉन्सेंट्रेशन। मींस हर एक इलेक्ट्रोलाइट की अपनी CMC होती है, अपना एक क्राफ्ट टेम्परेचर होता है। तो ये एसोसिएटेड कोलाइड्स। सोप जो है, सोप का जो क्लींजिंग एक्शन है वो मिसेल फॉर्मेशन के थ्रू ही होता है, मतलब वहां पर मिसेल बनने लगती है। अब मिसेल कैसे बनेगी सोप में, ये देखते हैं, या कैसे क्लींजिंग एक्शन दिखाती है सोप, हमें ये देखना है। मान लीजिए आप एक बकेट, हाफ बकेट पानी लें, आप उसमें 1 स्पून सोप या डिटर्जेंट डालना है। ठीक है, अब आप सोचें कि आपका जो शर्ट है या आपका जो एक कोई भी जीन्स है वो उसमें अच्छा साफ निकल आए, नहीं होगा वो, आप प्रॉपर्ली इसको वॉश नहीं कर पा रहे हैं, वो उसमें जो भी डस्ट डर्ट जो भी लगा हुआ है वो क्लीन नहीं हो पा रही है। क्यों? क्योंकि वहां पर सोप की कंसंट्रेशन कम है। क्लियर है? सोप की कंसंट्रेशन कम है। तो जब हम उसे, सपोज हमने इस बॉटल में यदि थोड़ा सा सोप लिया, मतलब डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है, तो ये सोप का पार्टिकल्स कैसा होता है? टेंथ में आपने पढ़ा हुआ है, कार्बन की लंबी चेन होती है और यहाँ पर सोप है क्या? सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स। सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स, तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स का जो पार्ट है COO, और यहाँ पर क्या रहेगा? सोडियम। सोडियम रहेगा प्लस फॉर्म में और यहाँ रहेगा COO नेगेटिव। ओके, सो सोप का ये वाला पार्ट पोलर है और ये नॉन पोलर है।
ये वाला पार्ट हाइड्रोफिलिक है। क्यों? क्योंकि वाटर तो पोलर है और ये भी पोलर है, तो लाइक डिसॉल्व्स लाइक, तो पोलर पोलर को अट्रैक्ट करेगा। बट ये पार्ट जो है, कार्बन की लंबी जो चेन है, वो क्या है? हाइड्रोफोबिक है, मतलब वो वाटर को रिपेल कर रही है, वाटर को रिपेल कर रही है। तो होगा क्या, जब भी हम वाटर मॉलिक्यूल, वाटर में जब हम इस सोप मॉलिक्यूल्स को लेते हैं, यदि डाइल्यूटेड कंसंट्रेशन है या कम कंसंट्रेशन है, तो डेफिनेटली वो इस तरह से सेपरेटली दिखेंगे, आपको दूर दूर दिखेंगे, क्योंकि डाइल्यूट सोल्यूशन है, ठीक है। बट यदि हम एक सर्टेन कंसंट्रेशन, मतलब उसकी क्रिटिकल मिसिंग कंसंट्रेशन जितना, आप क्या करोगे, ये बोलोगे अरे उसमें तो हमारा जीन्स साफ नहीं हुआ है, तो आप क्या करेंगे, उसमें और सोप डाल देंगे, फिर आप आराम से देखते हैं कपड़ा आपका साफ हो जाएगा। तो हुआ कैसे? यहाँ पर सिंपल, आप जैसे हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ा दिए सोप के, तो कार्बन में कैटिनेशन या एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी आपको मिलेगी। कैटिनेशन क्या? सेल्फ लिंकिंग। और ये पार्ट क्या हो रहा है? रिपेल कर रहा है। क्यों? क्योंकि हर एक सोप का ये नेगेटिव और ये प्लस, हर एक सोप का ये नेगेटिव और ये प्लस पार्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, इनके रिपेल करने से, और ये पास पास आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो तो अफेक्शन रखते हैं। तो होगा क्या, हमारे पास एक इस तरह का स्ट्रक्चर, एक ये मिसेल बोलते हैं, ये मिसेल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से मिसेल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या, ये माइनस पार्ट है, तो माइनस तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो वो दूर दूर होना चाहेंगे, और ये वाला पार्ट एक दूसरे से को अट्रैक्ट कर रहा है, तो एक मिसेल बन जाएगा। क्लियर करना, आप मिसेल कैसे बना ये तो देखा, बट ये क्लींजिंग एक्शन कैसे दिखेगा ये देखना है। आपने देखा होगा डमी, मार्केट में जो शॉप में डमी होती है, तो डमी को इतने कॉस्टली अपन ड्रेसेस पहना के रखते हैं, है ना। तो और आप यदि जैसे व्हाइट भी पहना हुआ है, बट आप यदि जाएंगे तो ट्रायल रूम, आप बोलेंगे कि मुझे ट्रायल करके देखना है, तो जनरली कई शॉप में मना कर देते हैं, नहीं नहीं वो गंदा हो जाएगा, ठीक है। या आपने सुबह से जो कपड़े पहने हुए आप शाम तक देखेंगे आपकी कॉलर अपनी अंदर की तरफ में ज्यादा गंदी होती है, उसमें जो है मैली हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी से ऑयल और स्वेट दोनों सिक्रेट हो रहे हैं, और ऑयल है क्या? कार्बन कंपाउंड, ग्रीसी। तो यदि आप उस डमी को तो पसीना नहीं आ रहा है, उसको तो ऑयल नहीं निकल रहा है, ऑयल ग्लैंड से ही नहीं है उसमें, तो क्या होगा, उस पर जो डस्ट आएगी वो रफनेस की वजह से उसमें होल्ड हो जाएगी, लेकिन स्टिक नहीं होगी। आप उसे इस तरह से झटकार दीजिए तो सारी डस्ट उसमें से निकल जाएगी। बट वो जो आपने पहन रखे हैं, तो उसमें ऑयल आ गया और वो डस्ट आके उस पर स्टिक हो रही है। तो जो भी कपड़े पे, जो भी मतलब हमें वॉश किसे करना है, वो जो ऑयली सब्सटेंस, ग्रीसी सब्सटेंस पे जो डस्ट पार्टिकल्स स्टिक हुए हैं, हमें उसे रिमूव करना है। तो ऑयली सब्सटेंस क्या है? कार्बन कंपाउंड है। तो उस ग्रीसी सब्सटेंस पे ये कार्बन का अफेक्शन होगा, तो उस क्लॉथ पे जो भी ऑयल था उस पर जो डस्ट थी, तो डस्ट किसके हिसाब से, किसके सहारे लटकी हुई है? स्टिक है ऑयल की। तो ये वाला पार्ट उस ऑयली सब्सटेंस से बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, और ये वाला पार्ट वाटर में रिटेन रहने की कोशिश करेगा, तो अपने आप वो कपड़े से डिटैच हो जाएगा। कई बार आपने देखा थोड़ा सा उसको रब करो तो साफ हो जाता है, कॉलर वगैरह थोड़ी सी रब करो तो साफ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो यहाँ से डिटैच हो गई है। इसने, क्लस्टर ने, इस मिसेल ने उस ग्रीसी सब्सटेंस को ले लिया जिसकी हेल्प से डस्ट स्टिक थी, तो जब वो ही निकल गई कपड़े से तो डस्ट ने तो निकलना ही था। तो इस तरह से ये कपड़े साफ होते हैं। ओके, सो क्लींजिंग एक्शन ड्यू टू द मिसेल फॉर्मेशन।